rehearsals are pretty kick-ass right now. Thankfully, no injuries, nothing, but just full of fun. Enjoying it a lot because I think, New Year is so exciting for everybody, and it's sort of different to be celebrating it with so many people all together. So I think the performance in its own, it's not stressful or anything. It just becomes a lot of fun. I think इस साल you're right, there are lots of songs जहाँ पर सबको बहुत सुन के मज़ा आता है and perform भी किया जा सकता है. One of my favorites would have to be I think यार ना मिले from Kick. Yeah. And are you even performing on the hit number of your own song Avari? Yes, Avari is a part of the medleys that I'm doing, and so is Pilu. I think that remains a constant. Prachi, on one side, people like to go and enjoy their New Year's with their family. They want to go out on a vacation, which most of the people from Bollywood are. How come you choose to work on that? This year I am performing, but पिछले साल मैंने New Year's पर कोई performance नहीं किया था. So I think it's just a matter of choice, पिछले साल I had a great time with family, and this year I will be performing. So it's work, but yet at the same time, there are going to be so many people. So it will be fun along with that. Let's see, maybe next year again I'll choose to spend it with family or maybe perform. I don't know. So I think it's okay. It's about choice. Actually, I think I need to make many resolutions this year. Because I've been, told by the people who work with me very clearly that this year I have to be more active on social media. So I think ये मेरा एक resolution ज़रूर है कि इस साल मुझे social media पर ज़्यादा active रहना है. Apart from that, I think I should make a resolution कि मुझे एक से ज़्यादा फिल्म तो करनी चाहिए इस साल. That's another resolution for me. Apart from that, all the fun things I think they're taken care of anyway. A movie with Imran Hashmi, like opposite Imran Hashmi. So how are you going to prep up for the role? It's actually not official yet. I am reading the script, and I think once this performance is over and New Year event and everything is done, तब New Year में I think सारी बातें official होगी. अब तक कुछ भी official नहीं है, so I don't think I can comment on it, but I can say that if it happens, then it'll be a great one. Have you seen the last blockbuster release of 2014, PK? Unfortunately, I haven't yet watched it, no. Oh, you haven't? Not because, yet. There are some controversies which are coming up wherein people are trying to, comment that the religion is being brought into the picture. So as an actor, do you think that such things shouldn't be taken into consideration when it comes to a creativity of a filmmaker? I actually will not be able to comment on a particular film. आप जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, unfortunately मैंने वो अब तक नहीं देखी है. मैं ज़रूर देखूँगी. I won't comment on a film, but I can say that ये चीज़ें I think बहुत common है. Every other day you're going to see these things happening, क्योंकि शायद जब कहानियाँ लिखी जाती है या plot बनते हैं, it's so tough to keep certain things in mind and yet be restricted, and at the same time आप अपना message भी देना चाहते हो. I think it becomes so conflicting all in all. So nobody does it with purpose, I'm sure. So I just think it's something that happens, and it's not deliberate, obviously. Right. Even the censor board is actually going ahead and supporting the film, and they're saying that we want to go ahead with it and we will not cut anything. So that's a good thing, right? I mean, being apart from the industry, what is your take? I won't be able to say anything until I actually watch the film, but if that's what they're saying, then I think it's a good thing. Some wishes for the viewers? Absolutely. I'd like to wish all the viewers a very happy New Year. Have a super rocking 2015. Don't break the resolutions that you make, and just enjoy yourselves. Did you have any resolution for 2014 and did you break them? In 2014, I actually did not make any resolutions because मुझे पता था that they're all going to be broken. But this year, I have to keep all my resolutions that I make. Prachi, is it true कि फिल्म आपने साइन की है या अभी आप स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं? मतलब वो बहुत पेपर्स में भी आ गया कि आप साइन कर चुकी हैं? Well, actually, आपने जो पढ़ा है वो ऑफिशियल नहीं है अभी तक. Sorry, आपने जो पढ़ा है वो अभी तक ऑफिशियल नहीं है. कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स जो है वो डेफिनेटली जनवरी में आपको मिलेंगी, बिकॉज आई स्टिल हैव टू रीड द फिल्म, सो इट्स नॉट ऑफिशियल. प्राची, कैसी लग रही है आपको स्क्रिप्ट? आप पढ़ रही हैं, कैसा लग रहा है? क्या चीज़ खास आपको पसंद आ रहा है कि ये फिल्म आप करेंगी, मतलब आप इच्छुक हैं? You really want me to be killed here only?
I'd just make a very general comment on it, saying I think it's a very very interesting subject, जिस वजह से of course उन्होंने भी ये pick up किया है, and I'm sure that Mr. Azhar has millions of fans, and they'd love to watch his story unfold on screen. And I think it'll make for a great film. Of course it is, you think of it only when it's happening, right? Like you think of Valentine's Day only in February, you think of New Year only in the last week of December, or maybe just in the month of December. That's how it is, it's all momentary, but if you want to be disciplined and keep something on, then I don't think anything can stop you, whether it's the New Year or not. If you want to follow something, you'll follow it anyway. So I think resolutions should be so much fun that you by choice or just by default have to follow it. You shouldn't. Yeah. आपके साथ गौहर और ईशा गुप्ता भी परफॉर्म कर रही हैं अलग अलग जगह पे। जी। आपकी बात हुई, आपसे पूछा गया था कि आप कहाँ परफॉर्म करेंगी, किस तरीके से आपने सोचा कि मुंबई में ही परफॉर्म करना है? मैंने एक्चुअली मुंबई में कंट्री क्लब के लिए 2012 भी परफॉर्मेंस ऑलरेडी किया हुआ है, एंड दिस ईयर आई थॉट इट वुड बी अ ग्रेट थिंग टू बी इन दिल्ली, समवेयर डिफरेंट. So that's how Delhi, I think, has happened for me. एक कड़ी प्रतियोगिता भी हो जाती है आपस में जब एक ही साथ के लोग। Oh my God, no way. तो आप मतलब अपना बेस्ट देंगी, इस तरीके से आप सोच रही हैं क्या चल रहा है? कोई और परफॉर्म करे या ना करे, हमें तो अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा, because in today's time, everything is so fast and out there, and people, I think they just judge so easily. So you have to give it your best. Everything has to be great and perfect. चाहे आप अकेले हो, कोई और है या नहीं है, you just have to do your best. How's the next year lined up for you? Another hot song from yours that you can expect? Well, that depends. If there's another great number like that, why not? But yeah, in terms of films, you'll hear more than one announcement in January. Yeah. Would it start from today with this event, tweeting about it? It has the last tweet was, I think, on September 26th. Not that I'm stalking you, but just asking a question. No, I'm actually glad. Thank you for following up. I saw that. I saw you checking. Yes, I think today would be a great day to actually to begin. Why wait for the first? Let's do it today. जब भी मतलब आप बहुत देरी से पर्दे पे दिखाई दे रही हैं, मतलब आपके जो भी प्रोजेक्ट है काफी समय बाद आ रहे हैं, तो क्या रीजन है? मतलब कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिल नहीं रहे हैं या well actually ये जो डिले है, ये इट्स नॉट इंटेंशनल. कुछ फिल्में थी जो 2014 में बनने वाली थी, मगर इट डिड नॉट गो ऑन फ्लोर इन टाइम, एंड उनमें से एक या दो बनी ही नहीं है अभी तक. So I guess that is why this whole long gap. But thankfully, whatever is happening now, it's all going to happen fast. So in 2015, it won't be such a long wait. Prachi, there were also reports that you and Ekta have just parted ways or something. Where is this coming from? That's it. प्राची, खबरों के मुताबिक वो मूवी में मतलब करीना भी है, तो कहीं ना कहीं करीना एक बड़ी Well, I just told you nothing is official yet. How would I be able to comment on anybody else? कि जैसे फिल्म में कोई बड़ा स्टार हो तो मतलब उतना कम मिलता है, या फिर जो We are going. कहीं ना कहीं कंपटीशन हो जाता है. You're getting ambitious. We are going out of way. You should ask me this coming January. I think we'll have a clearer picture about that. Yeah. Thank you guys. So न्यू ईयर परफॉर्मेंसेस जो होती हैं वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए, ताकि आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर सकें आपके जो लाइव ऑडियंस आती है आपको देखने के लिए. तो जी मैं 2 एक्ट्स करूँगी और वो काफ़ी यूजुअल परफॉर्मेंसेस से लंबी होती हैं. सो रिहर्सल्स काफ़ी चल रही हैं, एंड आई एम डूइंग कंट्री क्लब का जो मुंबई शो है, जो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट शोज़ होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पे टू डू अ गुड शो. सो या रिहर्सल्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है. गौहर, इस बार हम कोई खास तरह के डांस परफॉर्मेंसेज जैसे किसी मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर पे कोई बताना चाहिए, कौन से नंबर्स पर प्रिपेयर कर रहे हैं? ऑफ कोर्स अगर एक न्यू ईयर नाइट होती है तो द वन थिंग दैट इंडिया वांट्स इज़ बॉलीवुड. तो बॉलीवुड के इस साल के जो सबसे बड़े हिट्स हैं उनका एक मेडली तैयार किया है, और उसके साथ बीच में काफ़ी ज़्यादा हिप हॉप नंबर्स को ब्लेंड किया है, so that you make it quite long, and yeah, you try and make it in time, then you forget about your phone.
हाँ, द हिट नंबर्स, सारे जितने हिट नंबर्स हैं उनका एक बहुत ही अच्छा मैशअप बना के विनोद सुमित कोरियोग्राफर्स हैं, उन्होंने बनाया है। और कंट्री क्लब की मुंबई की जो पार्टी होती है वो उनकी बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट होती हैं, तो इट हैज़ टू बी गुड एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट द बेस्ट। और गौहर, और भी जैसे कि आप परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो इस बार मतलब कोई खास तरीके का आपसे कुछ नया, एक बार कुछ गौहर का स्पेशल कुछ देखने को मिलने वाला है? आई थिंक गौहर का डांस ही स्पेशल होता है, सो नहीं, कोई नया गाना रिकॉर्ड तो नहीं किया है ऑब्वियसली। आई थिंक व्हाट सेट्स मी अपार्ट इज़ द फैक्ट दैट जब मैं नाचती हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं नाचती क्योंकि मैंने कमिटमेंट की है उधर परफॉर्म करने के लिए। मैं ऐसे नाचती हूँ ताकि कोई भी एक जो ऑडियंस मेंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा एंजॉय करे मेरे साथ जितना मैं स्टेज पर एंजॉय कर रही हूँ। सो आई थिंक माई USP इज़ माई एनर्जी, माई एक्सप्रेशंस। अगर आप एक लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आप ऑडियंस को इन्वॉल्व ना करें तो वो थोड़ा फीका रह जाता है। सो आई गेस दैट्स माय USP। न्यू ईयर का जो टाइम होता है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, जब भी कहीं परफॉर्म करते हैं बहुत क्राउड होता है और बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं आती हैं कि वुमेन्स के लिए खास तौर से। आप प्लीज़ नेगेटिव बातें ना करें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, सीरियसली, बिकॉज ध्यान रखेंगे ऑब्वियसली ध्यान तो रखना ही चाहिए डेफिनेटली, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, कुछ भी होता है भीड़ के अंदर कितना ध्यान। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग सो नेगेटिव। मैं यहाँ कुछ अच्छा करने आई हूँ तो मैं अच्छी थॉट्स लेकर जाना चाहूँगी। तैयारी की बात करें जी, 2015 को या 2014 को? वेल, कल एक वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स में मुझे और कपिल शर्मा को द टू मोस्ट impactful faces of this year कहा गया है। सो आई एम रियली हैप्पी कि लड़कियों में मेरा नाम लिया गया है। दिस ईयर एक्चुअली बहुत 2014 तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, बट एक्चुअली वो शुरुआत 2013 की दिसंबर से ही हो गई थी क्योंकि आफ्टर बिग बॉस इट्स जस्ट बिन अ ग्रेट ईयर एंड मैं दुआ करती हूँ कि हर साल ऐसा ही हो और भी ज़्यादा प्यार मिले और भी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले। और 2014 जैसा साल मैं दुआ करती हूँ कि हर साल वैसा ही हो। Well, 2015 you seem to be coming in a very big way as an actress, like a lead actress. Yeah. So could you tell us something more about that? Yeah, actually I'm keeping my fingers crossed about that and जैसे कहते हैं ना, don't count your eggs before they are hatched। तो मैं एक्चुअली अभी काफ़ी पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा है। बहुत जल्द हम बहुत ही एक आई एम गोना मेक एन अनाउंसमेंट अबाउट दैट फिल्म। Yeah, we've completed the shoot and 2015 I hope is a film year for me जहाँ पर मैं काफ़ी सारे announcements करूँ about my films as well, but one is already completed जिसका नाम है Fever और वो hopefully early next year आ जानी चाहिए। उसके लिए भी काफ़ी to make it a good one we're making all the efforts, so let's see, inshallah। Have you seen the last blockbuster of 2014, PK? Yes, you have. You enjoyed the film? Yeah, I loved it। But there are a lot of people, like groups coming out and saying that it's religion is being brought into the picture, and they've been saying that we want to ban the film from played at theaters, but the censor board is actually supporting the film and they're saying that we should not stop somebody's creativity. No, I think they didn't speak about one particular religion. They spoke about a general ideology overall. They never spoke about religion. They spoke about what human beings make out of it, I guess. So, I think ऐसी तो कितनी movies आई हैं जो एक मैसेज लाती हैं ताकि इंसान अपने खुद का दिमाग इस्तेमाल करे और it's a general idea. I think राजकुमार हिरानी जैसे फिल्म मेकर्स हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही पिक्चरें बनाएंगे एंड आई डोंट थिंक उसमें किसी भी रिलीजन को ऑफेंड होने की ज़रूरत है। या आई थिंक इट्स अ पार्ट आउटलुक ऑफ पीपल जो लोग हैं जो आर्ट समझते हैं, सिनेमा समझते हैं, सोशल मैसेज समझते हैं, तो वो उसमें कोई बात ही नहीं है ऑफेंसिव होने की। तो ऐसी तो बहुत सारी मूवीज़ आई हैं एंड किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा ही। अभी मुझे जैसे it's about, I think we live in a country like India और थोड़ा freedom होना चाहिए of thought and art. As a part of the film industry, are you happy that the censor board and also the Supreme Court is with well, I don't know if some filmmakers, they're supporting them? Well, like I said, I was not a part of the film, so I hope that whatever the law-making bodies feel is right, they should do that and I think overall it was a really nice film and
आई होप समडे राजकुमार हिरानी के साथ भी काम करने का मौका मिले, बिकॉज ही इज़ something else. He's brilliant, and Amir Khan is, I mean, there's nothing that I can say to even describe him. Last year we saw you with Jhalla Walla. This year I didn't have a song, and do we have anything? Yes, inshallah. And which is the tougher part, do you think, performing on stage or shooting for a song? I think दोनों ही tough होते हैं. जैसे कि अगर आप shoot कर रहे हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, आपको बाल perfect रखना होता है, और एक भी लटके यहीं से कहीं हो जाए तो वो ज़्यादा इरिटेशन लेवल्स बढ़ जाती हैं. कभी कभी AC सेट्स नहीं होते तो उसमें भी डिफ़िकल्ट होती है. आउटडोर शूट होता है, डिफ़िकल्ट होता है. लाइव परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि आपको एक ही मौका मिलता है, और अगर आप भूल गए तो आप भूल गए, बट यू हैव टू कैरी ऑन. और एनर्जी अगर थोड़ी भी ड्रॉप हो गई तो ऑडियंस कैन पिक इट अप लाइक दैट. सो आई थिंक दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं. बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे सिंगर्स हैं हमारे कंट्री में. बट आई थिंक माई ऑल टाइम फेवरेट्स आर सोनू निगम, श्रेया एंड सुनिधि. हाँ, आई एम श्योर उन्होंने उनका पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, बट जैसे मैंने कहा बहुत सारे हिट्स हैं इस साल के. न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है आपने? मैं रेजोल्यूशंस नहीं बनाती क्योंकि जाते हैं या तोड़ देते हैं? नहीं, क्योंकि जब आपको कुछ करना होता है उसके लिए रेजोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती. आप वो वैसे ही कर सकते हैं. जैसे कि मैं कहूँगी इस साल में अच्छी बनूंगी. आई मीन अगर आप अच्छे हो तो आप हर साल अच्छे रहोगे. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, आई डोंट मेक एनी रेजोल्यूशंस. हाय, बिग बॉस सीजन 8 देख रही हैं आप? थोड़ा बहुत. कैसा लग रहा है? यू नो, अगर मैं उसके कॉन्फ्रेंस के लिए गई होती तो ज़रूर बताती, लेकिन मैं कंट्री क्लब के लिए आई हूँ तो मैं कंट्री क्लब के बारे में बात करती हूँ. क्योंकि आप विनर थी पिछली बार, तो इस बार देख के थोड़ा बहुत तो बताइए कैसा लग रहा है? आई थिंक थैंक गॉड मैं विनर थी, इसलिए तो मैं इस साल कंट्री क्लब के न्यू ईयर के सबसे बड़े पार्टी में परफॉर्म कर रही हूँ. तो आप मुझे पूछेंगे तो मैं जैसे भी करके कट टू वहीं पर आ जाऊंगी कि ये वी आर एट कंट्री क्लब, लेट्स टॉक अबाउट दैट. वाओ यार, पीपल शुड टेक आइडियाज फ्रॉम यू अबाउट क्या हो जाती है. मतलब इट्स लाइक रियाना अगर अमेरिका में परफॉर्म करे न्यू ईयर नाइट पे, तो मुझे यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए. और कंट्री क्लब के लिए तीनों. Dude, really? 3 एक्ट्रेस परफॉर्म कर रही हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन. ये एक स्टेज नहीं है, ये अलग अलग शहर हैं. आपके लिए होती होगी, मेरे लिए तो नहीं होती, क्योंकि जिस स्टेज पे आप परफॉर्म करते हैं आपको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए कि आप वो स्टेज को उस वक्त के लिए ओन करते हैं, और आपके बाद कौन आएगा, आपके पहले कौन आएगा. और यहाँ तो वो क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि मुंबई में मैं ही परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे मुंबई का कंसर्न है, एंड आई एम श्योर दैट वील रॉक इट. और कभी स्टेज परफॉर्मेंस जिससे बात करिए, आपने कभी किसी का देखा है, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो आपको बहुत पसंद आया हो? कभी लाइव आपने कभी नहीं देखा? यू मीन एज एन एक्टर परफॉर्मर या सिंगर्स? एक्टर. लाइव आई थिंक परफॉर्मर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन somebody who does really brilliantly live, one of them of course is माधुरी दीक्षित जी. I think she is brilliant. I think वो अगर सिर्फ खड़ी भी रहेंगी तो उनके expressions are enough to the crowd to go crazy. लेकिन अगर सिंगर्स की ओवरऑल परफॉर्मर्स की बात करूँ तो मैंने 2 लोगों का लाइव परफॉर्मेंस देखा हुआ है. वो में से एक थी श्रेया घोषाल और सोनू निगम, और दोनों के ही वक्त मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे. दे आर सो गुड. सो या 2015 में क्या आपका मैरिज का कुछ ऐसा प्लान है? हाँ. नहीं सर, मुझे बहुत काम करना है, और एक्चुअली उस टाइम पे मैं शादी करूँगी जब मैं फुली रेडी होंगी मेंटली, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है जब आपको लिटरली यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर, अदरवाइज यू डोंट वांट टू डू इट. एंड इस वक्त 2014 इतना अच्छा रहा है मेरे लिए, तो आई होप कि 2015 में भी मैं काम पे कंसंट्रेट करूं, और जब शादी के बारे में सोचूंगी तो ज़रूर बताऊंगी. तो आपको मतलब किस तरह का लड़का अगर हम ये स्वयंवर का कर रहे होते ना, मैं आपका सवाल का ज़रूर जवाब देती, लेकिन इस वक्त कंट्री क्लब के डांस परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है. थैंक यू जी. तो सभी दर्शकों को गौहर खान की तरफ से और कंट्री क्लब के इस न्यू ईयर बैश की तरफ से a very very happy new year. God bless. Do great things. Shh.